আহিছো অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আজি 14 নৱেম্বৰ আজিৰ দিনটোত দেশবাসীয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ নেতা জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে কিন্তু পৰিতাপৰ কথা এয়াই এই অতি সন্মানীয় ব্যক্তিগৰাকীক কেন্দ্ৰ কৰি শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে এক নিকৃষ্ট পৰম্পৰা তথা ৰাজনীতি 2014 চনত কেন্দ্ৰত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছৰে পৰা শিশু দিৱসৰ দিনটোত ফেচবুক হোৱাটছএপ টুইটাৰ আৰু সামাজিক মাধ্যমত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰ চলি অহা দেখা গৈছে বিশেষকৈ হিন্দীত থৰকি দিৱস যাৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ হৈছে লম্পট দিৱস এই ধৰণে তেওঁলোকে পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে শিশু দিৱসৰ ঠাইত এই নাম ব্যৱহাৰ কৰি বিজেপিৰ বহু নেতা আৰু সমৰ্থকে প্ৰচাৰ কৰি আহিছে নেহৰুৰ কিছুমান বিশেষ আপত্তিজনক ছবি আৰু মন্তব্য আজিৰ দিনটোতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহল ফেচবুক টুইটাৰত আজিও ট্ৰেন্ডিঙত আছে থৰকি দিৱস হেশটেগ ব্যৱহাৰ কৰি বহু বিজেপিৰ সমৰ্থক তথা নেতাই কৰা বিভিন্ন আপত্তিজনক পোষ্ট দেশৰ ৰাজনীতিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলটোক সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিহ্ন কৰিবলৈ বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰা ৰণনীতিৰ ই এক অংশ বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে মন্তব্য কৰিছে এয়া এক অন্য অধ্যায় এই কথা আমি পিছত আলোচনা কৰি আছো আজি আমি আপোনাক দেখুৱাব খুজিছো বিজেপিৰ এই কাণ্ডৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰা এটা পদক্ষেপৰ বিষয় আজি কংগ্ৰেছ দলে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ভাৱমূৰ্তি সন্দৰ্ভত প্ৰচলিত বহু অপপ্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান প্ৰত্যুত্তৰ সাজু কৰি প্ৰকাশ কৰিছে ঝুট কা পৰ্দা ফাঁস শীৰ্ষকেৰে কেতবোৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন য'ত দলটোৱে খণ্ডন কৰিছে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ নেতা সমৰ্থকে উত্থাপন কৰি অহা তথা প্ৰচাৰ চলোৱা বিভিন্ন বিষয়ৰ এতিয়া আমি আগবঢ়াইছো সেই বিষয়সমূহলৈ দেশৰ এক দীঘলীয়া জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ কেন্দ্ৰিক বিবাদ বিভিন্ন সময়ত এই বিষয়টোৱে দেশৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখি আহিছো জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হলেই বিজেপিৰ নেতা সমৰ্থকে প্ৰায় জৱাহৰলাল নেহৰুক এই ক্ষেত্ৰত খলনায়ক ৰূপে অভিহিত কৰি আহিছে পিছে এই অভিযোগ কিমান সঁচা কি কয় ইতিহাসে চাওক কংগ্ৰেছে আজি প্ৰকাশ কৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন झूठ का पर्दाफाश क्या नेहरू थे कश्मीर विलय में देरी के जिम्मेदार अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि भारत में कश्मीर के विलय में देरी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार हैं। सिर्फ किरेन रिजिजू ही नहीं बल्कि भाजपा से जुड़ा अंतिम कार्यकर्ता हो या शीर्ष नेतृत्व सभी की यही सोच है जबकि सच बिल्कुल अलग है यह कहानी बंटवारे के समय की है जब अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए उस दौरान कुछ देसी रियासतें भी थी आजादी के बाद जब हरि सिंह को पाकिस्तान या भारत में से किसी एक में शामिल होने को कहा गया तो उन्होंने मौन साध लिया वह स्वतंत्र रहने के पक्ष में थे कुछ दिनों बाद जब कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित कबायली हमला हुआ तब नेहरू ने इसे लेकर 27 सितंबर 1947 को पटेल को चिट्ठी लिखी थी कश्मीर की परिस्थिति तेजी से बिगड़ रही है शीतकाल में कश्मीर का संबंध बाकी भारत से कट जाएगा हवाई मार्ग भी बंद हो जाता है पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना चाहता है महाराजा का प्रशासन इस खतरे को झेल नहीं पाएगा वक्त की जरूरत है कि महाराजा शेख अब्दुल्ला को रिहा करें शेख अब्दुल्ला को रिहा करने के पीछे जो नेहरू ने पत्र में पटेल को लिखा कि शेख अब्दुल्ला की मदद से महाराजा पाकिस्तान के खिलाफ जन समर्थन हासिल करें शेख अब्दुल्ला ने कहा है कि वो मेरी सलाह पर काम करेंगे दरअसल हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को 1946 में राजद्रोह के मामले में 3 साल के लिए जेल भेज दिया था नेहरू की चिट्ठी के बाद पटेल ने हरि सिंह से संपर्क किया और 29 सितंबर 1947 को शेख अब्दुल्ला रिहा कर दिए गए जब कबायलियों ने हमला किया तब राजा ने शेख अब्दुल्ला को ही अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिए दिल्ली भेजा था और इस तरह जिद पर अड़े हरि सिंह को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए राजी होना पड़ा विश्व राजनीति की गहरी समझ रखने वाले बेहतरीन कूटनीतिज्ञ जवाहरलाल नेहरू के बारे में भाजपा की ट्रोल आर्मी चाहे जो दुष्प्रचार करे लेकिन सच्चाई तो ये है कि कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कोई कसर बाकी नहीं रखी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गांधी नेहरू की विरासत को मिटाने की जो भाजपाई साजिश चल रही है वो कभी सफल नहीं हो এয়া ছিল প্ৰথমটো প্ৰতিবেদন কংগ্ৰেছৰ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায় উত্থাপিত এটা অভিযোগ হৈছে যে দেশৰ ৰাজনীতিত তেওঁ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় দিছিল বা প্ৰশ্ৰয় দিছিল
পিছে বিজেপি নেতা তথা সমৰ্থকৰ এই অভিযোগ খণ্ডন কৰি কংগ্ৰেছে আজি প্ৰকাশ কৰিছে আন এটা প্ৰতিবেদন যি প্ৰতিবেদনত দলটোৱে নচ্যাত কৰিছে এই অভিযোগ চাওক তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা দ্বিতীয়টো প্ৰতিবেদন क्या नेहरू ने परिवारवाद को बढ़ाया? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भाजपा और उसके अंधभक्त अनर्गल रूप से परिवारवाद का आरोप लगाते रहते हैं। ये कोई नहीं बताता कि आज भारत पूरी दुनिया के नक्शे पर अगर मजबूती से खड़ा है तो उसकी बुनियाद नेहरू ने ही डाली थी। दुनिया के सामने भारत के परमाणु शक्ति बन उभरने की बात हो या अंतरिक्ष में देश के झंडे गाड़ने की, ये सब नेहरू के संकल्पों के कारण ही मुमकिन हो सका। आज आपको जो बांध, बिजली घर, सड़क, रेल सुविधा, संचार तंत्र, सुरक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय दिखते हैं, इनमें से अधिकतर की नींव नेहरू के सोच का ही एक उदाहरण है। कुर्सी की राजनीति में नेहरू ने अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं किया, चाहे वो उनकी दुलारी और इकलौती बेटी इंदिरा हो या दामाद फिरोज गांधी। नेहरू जी के स्वर्गवास के बाद चुनावी राजनीति में इंदिरा को जो कुछ मिला वो उनकी काबिलियत थी। यही कारण है कि नेहरू के न रहने पर इंदिरा को तमाम राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता का झंडा बुलंद कर भारत को दुनिया के स्तर पर नई और मजबूत पहचान दिलाई, पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। क्रूर पूंजीवाद और साम्यवाद के खूंजी पंजों में जकड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारत की अनोखी समाजवादी अर्थव्यवस्था का परिचय करवाया। नेहरू ने इस देश के लिए इतना कुछ किया है कि आज भी देश नेहरू के दिखाए रास्ते पर ही चल रहा है। नेहरू को कोसने वाले उन्हें हर समस्या की जड़ इसीलिए बताते हैं कि जनता झूठ में ही उलझी रहे और उनकी कुर्सी बची रहे, तानाशाही चलती रहे। বিজেপি দলে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ দিগ্গজ নেতাসকলৰ ভিতৰত অতি আগ্ৰাসী ৰূপত স্থান দি আহিছে লৌহ মানৱ ৰূপে খ্যাত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক আমি জানো ইতিমধ্যেই দেশত স্থাপন কৰা হৈছে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী তথা উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী বল্লভভাই পেটেলৰ এক বিশালাকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি গুজৰাটত স্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক আগ্ৰাসী ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতেই বিজেপি নেতা আৰু সমৰ্থকৰ মুখত উচ্চাৰিত হোৱা এটা অভিযোগ হৈছে যে এই নেতাগৰাকীৰ প্ৰতি সদ্ভাৱ নাছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পিছে এই কথা কিমান সঁচা কংগ্ৰেছে আজি প্ৰকাশ কৰা তৃতীয়টো প্ৰতিবেদনত এই অভিযোগ খণ্ডন কৰি বিজেপি সন্দৰ্ভত কি কৈছে চাওক क्या नेहरू को सरदार पटेल पसंद नहीं करते थे? सरदार पटेल के नाम पर भाजपा सालों से राजनीतिक रोटियां सेकती आई है। वही भाजपा जिसके आका आरएसएस पर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया। मोदी जी कहते हैं कि पटेल को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। उन्हें नहीं मालूम कि जिस सरोवर के किनारे पटेल की मूर्ति उन्होंने लगवाई 1961 में परियोजना का शिलान्यास भी नेहरू ने ही किया था। न नेहरू की बात को पटेल काटते थे, न ही पटेल की बात को नेहरू। आजादी के बाद जब देश के कई नेता पटेल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे तो उन सभी को पटेल ने जवाब देते हुए कहा, जिसे बापू ने तय किया है वही हमारा नेता होगा। फरवरी 1950 में नेहरू की ओर से पटेल को प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया, उसे भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस काल में बने राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थान, तमाम स्कूल और कॉलेज के नाम, देश की कई सड़कें, पार्क, स्टेडियम और एयरपोर्ट सरदार पटेल के नाम पर हैं। सरदार पटेल भी नेहरू के कार्यों की खूब प्रशंसा करते थे। नेहरू के 59वें जन्मदिन पर पटेल ने संविधान सभा में कहा, महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना और यह देखकर बहुत संतोष होता है कि सही व्यक्ति को चुना गया। नेहरू सच्चे अर्थों में गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हैं और उन्होंने विश्व के राष्ट्रों के बीच भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। सच कह रहा हूँ, जब भाजपाई अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गुलाम हो चुके अंधभक्तों के सहारे नेहरू और कांग्रेस पर झूठा आरोप लगाते हैं तो पटेल की आत्मा रो उठती होगी। काश आज पटेल जिंदा होते तो फिर से भाजपा और संघ पर प्रतिबंध लगा देते। ইফালে হিন্দু ধৰ্মক আগস্থান দি ধৰ্মৰ ৰাজনীতিৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ প্ৰতি এক পোনপটীয়া অভিযোগ হৈছে যে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আছিল এগৰাকী হিন্দু ধৰ্ম বিৰোধী ৰাজনীতিক
একাংশই আনকি বিভিন্ন সময়ত জৱাহৰলাল নেহৰুক এগৰাকী ইছলাম ধৰ্মী লোক বুলিও অভিহিত কৰি আহিছে। পিছে এই অভিযোগ কংগ্ৰেছে কেনেদৰে খণ্ডন কৰিছে চাওক কংগ্ৰেছে আজি প্ৰকাশ কৰা তেওঁলোকৰ চতুৰ্থটো প্ৰতিবেদন। क्या नेहरू हिंदू विरोधी थे? अक्सर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भाजपा की ट्रोल आर्मी इल्जाम लगाती है कि वह हिंदू विरोधी थे। कुछ लोग तो ये भी अफवाह फैलाते हैं कि वह मुसलमान थे। सोशल मीडिया पर कई सालों से जवाहरलाल नेहरू को लेकर इस दावे के साथ एक मैसेज वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा था कि मैं शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुस्लिम और दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। लेकिन सच क्या है, आइए जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे और पेशे से बैरिस्टर थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कोल ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते थे। जवाहरलाल नेहरू की माता लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। सच तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू अपने धर्म और संस्कृति का पालन पूरी ईमानदारी से करते थे। उनके लिए धर्म राजनीति नहीं बल्कि निजी अध्यात्म का विषय था। हिंदू धर्म को लेकर नेहरू के विचार खासे उदार थे। वे महात्मा गांधी की उसी धार्मिक दृष्टि से प्रेरणा लेते थे जो कहती थी कि इतने विशाल देश को धर्म को किनारे रखकर नहीं चलाया जा सकता। उनके लिए धर्म का मतलब एक निजी आध्यात्मिकता थी। यह बात सच है कि जवाहरलाल नेहरू धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ जीवन भर डटे रहे। हिंदू धर्म की सभ्यता, संस्कृति और विरासत में उनकी गहरी रुचि थी और वो उसका पूर्णतः पालन करते थे। अब आते हैं नेहरू जी के ऊपर लगाए गए दूसरे इल्जाम के बारे में। सच तो यह है कि नेहरू ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो दुर्भाग्य से हिंदू हैं। ये बात हिंदू सभा के अध्यक्ष NB खरे ने बोली थी। भाजपा समर्थित ट्रोल आर्मी नेहरू जी को हिंदू विरोधी साबित करने के लिए चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन सच तो ये है कि हिंदू धर्म की सभ्यता, संस्कृति और विरासत की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, जो काम किए, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। झूठ की बुनियाद पर पंडित नेहरू की छवि बिगाड़ने की भाजपाई साजिश कभी कामयाब আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।